फ्रैक्शंस तो आप स्टूडेंट्स जानते ही होंगे फ्रैक्शंस क्या होती हैं। जैसे 1/2 is a fraction or a/b or p/q are the form of fractions. In this class we will learn that what are partial fractions. This is the first chapter of first semester in Diploma in Engineering in the University Polytechnic AMU Aligarh. Also, it is a course of class 11 in CBSE Maths STEAM course and is a very important but very easy chapter and very easy to do. I am Mohammad Said Zama. Welcome you in this channel. I will teach you in this video that what are partial fractions and what does it mean and how the questions are done. So let us start. First of all, the fraction is this, as I told this, these are the forms of fractions. This is a numerical fraction. These two are the algebraic fractions. Before we start doing partial fractions, let us know that how many types of fractions are there. Fractions types. First of all, proper fraction. Number 2, improper fraction. And number 3 is your mixed fraction. What is a proper fraction? Proper fraction is actually like this: 1/2, 3/5, 7/9, 11/105, etc., etc. In these proper fraction, if we see a particular trend, that what is that? This is numerator, this is denominator. Numerator is always less than denominator. That is, इसके अंदर अंश बड़ा है और अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसको अंश और इसको हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कहूं, a/b is a proper fraction, then it means is a is less than b or b is greater than a। बात एक ही है। इसका जस्ट उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दैट इज 7/5, 9/7, etc., etc. In this a particular fashion is न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि अंश हर से बड़ा है। इट मीन्स इज दैट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन denominator. Or in an algebraic form, a/b, I say if it is an improper fraction then a is greater than b, और यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ denominator is less than b is less than a. What is a mixed fraction? Mixed fraction is like this, जैसे 3/1/5। इसके अंदर आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, नॉट सॉरी इम्प्रॉपर बट प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और इसके अंदर एक होल पार्ट जुड़ा होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन क्या है, अगर मेरे पास ये कोई एक होल है और मैं इसके कई इक्वल पार्ट करता हूँ, सपोज 1, 2, 3, 4 and 5, these parts are equal, right? Then I take here 3 parts out of these 5 parts. Then I represent this shaded portion as 3/5. This is a proper fraction. But if I say that 3/5, that means 3/5 is here, there, and one whole this and another whole is this is added with this. इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 3/5. So this is a mixed fraction. Improper fraction भी एक फॉर्म है mixed fraction का। हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब पार्शियल फ्रैक्शन हम किसके करते हैं, फ्रैक्शंस हमारे कितने टाइप के हैं ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शंस जो है आपके दो तरह के, दो
कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है न्यूमेरिकल फ्रैक्शन और दूसरा है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में आपके जो फ्रैक्शन होंगे 1/2, 3/5, 7/9, 11/105 या 7/5, 9/7, ये न्यूमेरिकल फ्रैक्शन के फॉर्म है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन की फॉर्म में a/b या p/q या इस तरह से। इसमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इज आल्सो एन अलजेब्रिक फंक्शन and denominator is also an algebraic function. For example, a plus x plus c upon a plus x square plus 2. This is an algebraic. This is an algebraic function. This is also an algebraic function. Or in other words, I can say that algebraic fractions are, suppose, fx upon gx, where fx is a function of x and gx is a function of x. These are some algebraic fractions. हमें इन algebraic फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कुछ चीजें आनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शंस तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसमें फ्रैक्शन समझ लीजिए क्या होता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन होता है, सपोज कीजिए आपको दिया है ax प्लस b और यहाँ पर दिया है x प्लस a अपॉन x प्लस c। इस तरह से आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन हैविंग टू फैक्टर्स, इन बिटवीन देयर इज अ मल्टीप्लाई। अब इस फ्रैक्शन को अगर मैं छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ लूं, सपोज कीजिए a अपॉन x प्लस a प्लस माइनस b अपॉन x प्लस c, then these two small, these are also fractions, algebraic fractions, जिनका algebraic sum प्लस या माइनस इस टोटल algebraic एक्सप्रेशन के या algebraic फ्रैक्शन के इक्वल हो, तब हम इन दो पार्ट्स को, पहला ये और दूसरा ये, इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बताया मैंने कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, उसको मैं इस फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, जिनका अलजेब्रिक सम इस टोटल गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शन के इक्वल हो, तब हम इन छोटे छोटे फ्रैक्शंस को इसका पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब इसको करने के लिए क्या स्टेप्स हमारे पास हम करेंगे, हमें क्या क्या आना चाहिए। नंबर 1, हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। सपोज कीजिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस या प्लस 3। इसका मुझे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस या फैक्टराइजेशंस करना आना चाहिए। इसका मुझे अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर इस 3 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ऐसे दो फैक्टर लूंगा इसके, जिनका सम 4 हो, तो 3 और 1 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। सो यहां से क्लियर हुआ, x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 3, और यहां से 1 कॉमन लिया, x प्लस 3, यहां से x प्लस 3 फिर कॉमन हुआ, x प्लस 3 और x प्लस 1 यहां से बचा। तो ये इसके दो फैक्टर हो गए। तो इस तरह से मुझे किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन के क्वाड्रेटिक, इसमें स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक, और इसके फैक्टराइजेशन या क्यूबिक है, तो उसका कैसे मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, ये मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसको मैं बहुत फास्ट कर सकता हूं, ये भी मुझे आना चाहिए। नेक्स्ट, मुझे किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की डिग्री पता होनी चाहिए कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं। सपोज यहां पर लिख दिया मैंने x प्लस a, इसकी डिग्री बताइए। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर आना चाहिए वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है। यहाँ पर इसका
कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है या कोई और चीज नहीं लिखी हुई है, देयरफॉर इट्स कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर a, और वेरिएबल इसके अंदर कौन सा है? वेरिएबल है इसके अंदर x। x का इसके अंदर हम हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या है। यहाँ तो पावर गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन है। मैं इस x को लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर 1। देयरफॉर मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इसका डिग्री 1 है, इस फंक्शन का डिग्री 1 है। अगर मैं ये लिखता हूँ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, इट इज ए क्यूबिकल फंक्शन। और क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल इसमें x है, x स्क्वायर में कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म 9 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई हाईएस्ट पावर ऑफ द कोएफिशिएंट इज 3। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ x रेज टू द पावर 6 प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7x 5 प्लस 9x8 प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इसके अंदर डिग्री कितनी हुई? इसके अंदर हाईएस्ट पावर x की 8 है, तो इसमें डिग्री हो गई 8। ठीक है, तब इसके अंदर हम सबसे पहले अगर हमें कोई गिवन एक्सप्रेशन है, अब इसमें करने का मेथड क्या है वो समझ लीजिए। अगर हमें कोई गिवन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे। नंबर 1, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये हम सबसे पहले चेक करेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री फंक्शन की, x फंक्शन की या y फंक्शन की या z फंक्शन की डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या कम है। दैट इज वी हैव टू चेक that if given fraction, algebraic fraction is proper or not। प्रॉपर कब नहीं होगी? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब इस केस में ये इम्प्रॉपर होगी। और प्रॉपर कब होगी? प्रॉपर तब होगी जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर हमारी गिवन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन प्रॉपर है, तभी हम उसको इस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर है तो हमें सबसे पहले उसको प्रॉपर बनाना होगा एक्चुअल डिवीजन करके। जैसे आप अगर यहाँ पर दे दें x स्क्वायर x क्यूब दे दें, तो यहाँ पर x की डिग्री होगी 3 और यहाँ पर x और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसका जो फंक्शन बने पूरा है उससे एक्चुअल डिवाइड करेंगे और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे। यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम ही रहनी चाहिए, तभी हम उसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। इन पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करने के लिए मैं ये वाली बुक अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर वी.के. पारेशर ऑथर है इसके, और ये गलगोटिया पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिश्ड है। मैं इसको रेफर करूंगा। इसके अंदर पहला ही चैप्टर आपका पार्शियल फ्रैक्शन का है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनके करने का रूल मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए सबसे पहला इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर वी.के. पारेशर साहब
और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 एट पेज 13 वो हम लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज 13 अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर V.K. पाराशर। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 का, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 5x + 5 अपॉन x - 1 x + 4, x - 1 x + 4। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो मैं देखता हूं यहां पर x की पावर 1 है यानी कि डिग्री 1 है, और यहां अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आएगा। तो न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी है और न्यूमरेटर में डिग्री छोटी है। देयरफॉर दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको करने के लिए मैं मानता हूं लेट दिस इज इक्वल टू a अपॉन a, मैंने एक कांस्टेंट माना x - 1 प्लस मैंने मान लिया यहां पर b अपॉन, यहां पर ये मैंने दूसरा कांस्टेंट माना x + 4, ये मैंने मान लिया। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है सच दैट देयर सम और डिफरेंस b का या a का वैल्यू जो निकालूंगा वो यहां पर मेरा डिसाइड कर देगा कि प्लस आएगा माइनस आएगा इस टोटल के बराबर हो। कैसे करूंगा? मैं यहां पर एलसीएम लूंगा। एलसीएम लिया मैंने x - 1 x + 4, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। इससे कैंसिल हो गया, x + 4 बचा, इसकी मल्टीप्लाई a में हुई तो a × x + 4 प्लस b × x - 1, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 5x + 5 अपॉन x - 1 और x + 4। मैंने कहा कि ये पूरा इसके इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। मैंने इधर एलसीएम ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो गया। इट मीन्स इज दैट 5x + 5 इज इक्वल टू a × x + 4 प्लस b × x - 1। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूं, मेथड ध्यान से समझिए कि x को आर्बिट्रेरीली अपने मन से कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे करके दो इक्वेशन क्रिएट कर लूं, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है तो दो लीनियर इक्वेशन मुझे चाहिए, तब मैं उनको सॉल्व कर लूं a और b की वैल्यू निकाल लूं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर एक x की वैल्यू मैं ऐसे चूज करूं कि पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। जब ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a भी 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ b बचेगा। तो सपोज कीजिए मैं दूसरा मेथड लगाता हूं, लेट x इज इक्वल टू -4। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू -4 रख दूं तो क्या होगा? देखिए 5 × -4 प्लस 5 इज इक्वल टू a × -4 प्लस 4 प्लस b × -4 -1। तो ये तो हो गया 0 और 0 से a का मल्टीप्लाई हुआ तो ये टोटल हो गया 0। यहां पर बचा मेरे पास -4 - 1 इज इक्वल टू -5b, ये हो गया। यहां देखिए क्या आ रहा है, 5 × 4 = 20 -20 प्लस के 5, तो -5b इतना बचा, दैट इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू -5b, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 15/5, दैट इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास एक ये वैल्यू b की आ गई। अगेन अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखूं इस टोटल इक्वेशन में तो मेरा b 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, 0 हुआ, b में मल्टीप्लाई हुआ, 0 हुआ, मेरे पास सिर्फ ये बचा, a की वैल्यू निकल जाएगी। या दूसरा तरीका यह है कि b की वैल्यू मेरे पास आ गई, x की वैल्यू में 0 मान लो, 1 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, तब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी उसे मैं सॉल्व करूंगा। b की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ से रख दूंगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी।
बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट आई अगेन सपोज x इक्वल टू 1 यहाँ पर। नाउ लेट x इक्वल टू 1, तो इसमें पूरी इक्वेशन में आप यहाँ पर 1 रखिए, तो क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 5, यह आ गया 5 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ रखिए a इंटू 1 प्लस 4 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, तो ये 0 हुआ, ये भी आपका b से मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। यहां से क्या बचा 5 1 5 प्लस 5 दैट इज 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू a दैट इज 5a। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, और मैं इनको यहाँ पुट कर दूंगा, वो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। तो रख दीजिए a की वैल्यू आई है 2, यहां से ये 2 आई है, तो 2/x माइनस 1 प्लस का साइन 3 आया, और b की वैल्यू आई है यहाँ से 3, तो 3/x प्लस 4, तो ये इसके 5x प्लस 5/x माइनस 1 x प्लस 4 के ये पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर हो गया। यानी कि इस पूरी फ्रैक्शन को मैं इन दो सिंगुलर फ्रैक्शंस में तोड़ सकता हूं। ये एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इसको करने की? देखिए, जब आप इंजीनियरिंग का आगे का हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप में से बहुत से लोग बीटेक में जाएंगे, बहुत से लोग बीई में जाएंगे, और बहुत से लोग अभी इसी के अंदर आगे मैथमेटिक्स जो आपके दूसरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए किसी एक इस टाइप की फ्रैक्शन को हमें सिंपलर फ्रैक्शंस में तोड़ना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए इसको सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, which says that 7x minus 1 upon 1 minus 5x plus 6x square। अब देखिए, ऊपर एक आपको गिवन है, नीचे एक गिवन है। अब सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री में क्या है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर्स डिग्री इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर डिग्री। देयरफॉर फ्रैक्शन टाइप कैसी हो गई? Proper. That implies partial fraction can be done in the same stage. अगर ऐसा ना होता तो हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दूसरी चीज इसके अंदर ये आ गई कि यहाँ तो एक ही दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि इसके आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन करूंगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ, रफ में होना चाहिए 5x प्लस 6x स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसका आप 6 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, 5 हो, तो 2 3 जा 6। तो इसमें ये साइन माइनस का, तो इन दोनों को माइनस साइन देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1। अब एक पेयर मैंने ये बना लिया और एक पेयर मैंने ये बना लिया। यहाँ से मेरा 2x कॉमन है, तो यहाँ से मेरा क्या आया सबसे पहले 3 माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 3x, यहाँ पर सॉरी x भी आएगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1, इसके ये दो फैक्टर आ गए मेरे पास।
ओके, तो मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये काम आप रफ में करेंगे। एग्जाम के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो फैक्टराइजेशन का वर्क आप रफ में करेंगे। तो 7x माइनस 1 अपॉन, यहां से 2 फैक्टर लिख दीजिए, 3x माइनस 1 ये आया आपका, और 2x माइनस 1। ठीक है, अब सीधा सीधा इसके अंदर आप मान लीजिए लेट, आप यहाँ पे लेट लिख लीजिए अगली लाइन से, दैट इज इक्वल टू a अपॉन, एक मैंने कांस्टेंट माना, 3x माइनस 1 प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। अब मैंने जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करना है, दैट इज 7x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद यहाँ एक ही साथ आ जाएगा ये वाला फैक्टर 2x माइनस 1 और प्लस b के साथ आ जाएगा ये 3x माइनस 1। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां से मुझे एक नई इक्वेशन मिल गई, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 1। यहां तक आ गया। अब इस ब्रैकेट को मुझे 0 बनाना है, यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर 1/2 रख दूं तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा और a भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ, लेट, ये आपको काम रफ में करना था, लेट x इज इक्वल टू 1/2। तो ये a इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 1/2 माइनस 1। तो ये तो हो गया 0, कैसे हुआ, a इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0, a के साथ 0, तो टोटल तो हो गया 0 मेरा। अब प्लस b इंटू, यहां से देखिए एलसीएम लीजिए, 3 माइनस 2 अपॉन 2, ये 1 कर लीजिए, 3/2 हुआ, एलसीएम 2 आया, तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू, यहां से 7/2 होगा, एलसीएम लीजिए, 7 माइनस 2/2 दिया। तो यहां से b इंटू 3 में से बन गया 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7 में से 2 गया 5/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब इसी तरह से आप इसको 0 बनाएंगे। जब इसको 0 बनाएंगे तो x की वैल्यू यहां से मुझे दिखाई दे रहा है इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा 1 और x से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। नाउ लेट x इज इक्वल टू 1/3। तो इस पूरे इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो a इंटू, देयरफॉर ये अलग होगा, a इंटू 2 इंटू 1/3 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर 7 इंटू 1/3 माइनस 1। तो आप इसके कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2/3, ये लिख दिया 2/3, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 7/3, और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो, 1 से यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1/3, 1 माइनस 1। तो ये तो हो गया 0, इसमें b का मल्टीप्लाई, तो ये पूरी टर्म हो गई यहाँ पर 0। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, a इंटू 2 माइनस 3/3 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3/3। यहाँ से बचा माइनस 1 इंटू a/3 इज इक्वल टू 7 में से 4/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो माइनस a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू -4। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, उसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे यहाँ पर, a की वैल्यू -4 अपॉन
3x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है यहाँ से आपकी आएगी 5, तो 5 यहाँ से रख दीजिए, 5 अपॉन 2x माइनस 1। तो अब इसको आप तरह से अरेंज करके लिख दीजिए, दैट इज 5 पॉजिटिव पहले लिख दीजिए, 2x माइनस 1 माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 3x माइनस 1। तो ये मेरे इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, यानी कि इनका अगर मैं अलजेब्रिक सम करूंगा, एलसीएम लूंगा, सब काट करूंगा तो मेरे पास यही बचेगा। तो इस तरह से मैं इसको इन पार्शियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं या इसको तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर ये 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कीजिए या मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा आपके। अब ये तो आपके ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डिनोमिनेटर में 2 आपको ब्रैकेट्स दिए हुए थे या आपने बनाने थे फैक्टर करके। अगर कई सारे दिए हुए हो, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3x प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस बी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं। तो इसको मैं कैसे लिखूं? इसको भी मैं उसी तरह से लिखूंगा, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी और प्लस d अपॉन x माइनस डी। चाहे यहाँ पर 10 दिए हो, 20 दिए हो, 4 दिए हो, 6 दिए हो, और यहाँ पर ये जो भी होगा मैं इसको इस तरह से लिखता चला जाऊंगा। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी में भी ब्रैकेट पे पावर नहीं चल रही है, वो बाद में आएंगे। तो इस तरह से मैं इसमें फिर एलसीएम लूंगा, एलसीएम इसी के इक्वल आएगा, ए की मल्टीप्लाई इन 3 फैक्टर से हो जाएगी, बी की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये नहीं होगा, सी की मल्टीप्लाई ये छोड़ देंगे, इससे और इससे होगी, और डी की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी। तो मेरे पास फिर वो एलसीएम से कट जाएगा, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चंस में किया है, और ये पूरा अलजेब्रिक फ्रैक्शन इस टाइप से हो जाएगा। फिर मैं उसमें x की वैल्यू ब्रैकेट के हिसाब से, किसी भी एक ब्रैकेट के हिसाब से इस तरह से चूज करूंगा कि मेरे a b c दो कैंसिल हो जाए, एक बचे, एक वेरिएबल बचे कैपिटल A B C और D में से, और फिर मैं उसको कैलकुलेट करूँ। फिर मैं दूसरा करूंगा, इसी तरह से चूज करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर चौथा करूंगा। एक लेंथी प्रोसेस होगा थोड़ा सा, लेकिन फाइनली मेरे पास कैपिटल A B C और D जो मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने हैं उनकी वैल्यू निकल जाएगी। जब वो वैल्यू निकल जाएगी वो उठा करके मैं इसमें पुट कर दूंगा और आंसर मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरा एक प्रोसेस होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, किसी एक गिवन फ्रैक्शन का जो प्रॉपर फॉर्म में है। आगे के क्वेश्चंस में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इनके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, इतना आप खुद से ट्राई कीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।